قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين محمود الأحمد رسول الأمجد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على آله النجباء والأكرمين الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحبه الأكرمين والشهداء والصديقين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها حمله وفصاله 30 شهرا. سبحان عزیزو، مختلف شاگرین اور خطبہ سے آپ حضرات تقریباً مسلسل 7 دنوں سے نئے انداز میں، الگ انداز میں، بہترین انداز میں گفتگو سنتے چلے آئے ہیں، اور میری حیثیت صرف اور صرف ایک مدرس کی ہے، اور مدرس کی طرح اگر کسی چیز کو بیان کروں جو عمومی طور پہ مضامین پڑھائے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ نہ میں آپ کو سمجھا پاؤں گا اور نہ آپ سمجھ پائیں گے. ایک مرتبہ پڑھیں محمد والے محمد پہ.
बहरहाल हुसैन की मोहब्बत का ये असर ही है कि आप हजरात मुसलसल मजलिसें बर्पा कर रहे हैं, मुसलसल मरासी और मसाइबे आले मोहम्मद समाज फरमा रहे हैं और उसमें शिरकत कर रहे हैं। यकीनी तौर पे परवरदिगार आलम आपको इसका अजर व सवाब इनायत फरमाएगा। बहरहाल इन तमाम की तमाम बातों से गर्दे नज़र वो कुरान करीम कि जो परवरदिगार का मोजिज़े खालिदा बनकर सीने पैगंबर पे नाज़िल हुआ, उसी के सूरह अक़ाफ़ की 15वीं आयत का आधा से कम कुल टुकड़ा जिसकी तिलावत का शरफ हासिल किया है और गालिबन ये आयत करीमा इस मजलिस के मौजू के मुताबिक भी है कि जिसमें अल्लाह के कायनात ने इरशाद फरमाया है कि ववस्सैनल इंसाना, कि हमने इंसान को वसीयत की है। लफ्जों को बदल के कहूँ कि हमने इंसान को हुक्म दिया है बेवालिदैहि एहसाना, कि इंसान अपने वालिदैन के साथ नेकी करे, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करे, अपने वालिदैन के साथ अदब और ताज़ीम से पेश आए। क्यों? ताकि हमलत हो उम्मुहु कुरहा, इसलिए कि उसकी माँ ने बड़ी ही मशक्कत से एक मुद्दते तवील तक अपने बत्न में उसको छुपाए रखा है, अपने बत्न में उसको उठाए रखा है। उसके बाद फिर इरशाद होता है कि वज़अत हो कुरहा, फिर उसके बाद बड़ी ही मशक्कतों के साथ उसको पैदा किया है, उसको जना है। फिर कहा कि हमलहु व फिसालहु सलासूना शहरा, ये उसका हमल और उसके दूध पीने की मुद्दत कुल के कुल मिलाकर 30 महीने होते हैं, 30 महीने हैं। अजीब ज़ाहिरी तौर पे ये आधी से कम आयत का तर्जमा है और इसी के ज़िम्न में आप हज़रात के सामने कुछ अर्ज करने की कोशिश करूंगा कि ये आयत करीमा तमाम के तमाम तफासीरे अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से वाज़ेह है। ये बयान किया गया है कि ये आयत इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब कि जिस वक्त आप पैदा होने वाले थे उस वक्त पैगंबरे इस्लाम ने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से कहा कि बेटी तुम्हारे बत्न से एक हुज्जते खुदा पैदा होने वाला है और वो भी वो हुज्जते खुदा पैदा होने वाला है कि जो बागियों के गिरोह के हाथों कत्ल किया जाएगा।
جو باغیوں کے ظلم ستم سہ کر قتل کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کہتی ہیں کہ تو پھر ایسے بچے کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے ایسے بچے کی کہ جو ظلم و مصائب میں گھرا ہوا ہو۔ علی بن ابراہیم اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت نور حسین ابن علی رحم فاطمہ میں آنے والا تھا، اس سے قبل ہی پیغمبر کی خدمت میں جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا کہ فاطمہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو ایک قوم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا، ایک قوم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا۔ عزیزو، یہاں کے اوپر ایک بات واضح کرتا چلوں اور اس کے بعد عرض کر رہے ہیں کہ اور اسی شہادت کی وجہ سے پروردگار عالم نے نسل امامت کو اس کی نسل میں رکھ دیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو قرار دیا، لوگوں نے، بہت سے مفسرین نے بہت سے لوگوں کو قرار دیا، لیکن عزیزو اس آیت کا مصداق اس کو قرار دے تو سکتے ہیں، لیکن مصداق اس کو بنانے کے لیے وہ صفات نہیں پیش کر سکتے، وہ صفات پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے جن کو ہادی و رہنما بنا کر اپنی طرف سے بھیجا ہے ان کے صفات ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ عام انسان میں نہیں پائے جا سکتے، عام انسان میں نہیں پائے جا سکتے۔ مسئلہ اپنے محمد رسول تو عزیزو، میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ابھی تک جو اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو 2 سال کی مدت رضاعت ہوا کرتی ہے، یعنی 24 مہینے، 24 مہینے اور 6 مہینے کا حمل، لیکن آج تک دنیا میں کوئی بھی ایسا پیدا ہونے والا پیدا نہیں ہوا ہے کہ جو 6 مہینے کے حمل میں پیدا ہوا ہو اور زندہ رہ گیا، چاہے ڈاکٹری اعتبار سے ہو یا سائنسی اعتبار سے ہو۔ ابھی آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ 6 مہینے کا حمل پیدا ہوا اور اس دنیا میں باقی ہے۔ ہاں، صرف اور صرف صرف اور صرف 2 شخصیتیں اس کائنات میں ملتی ہیں کہ جن کے حمل کی مدت 6 مہینے ملتی ہے، اور وہ بھی 2 کے دونوں معصوم، 2 کے دونوں معصوم۔ پہلے معصوم جناب
जिनके हमल की मुद्दत 6 महीना बताई जाती है, और दूसरे हुसैन इब्ने अली। बहरहाल इस आये करीमा की तफसील में नहीं जाना है, वरना रात गुजर जाएगी और तफसील नहीं हो पाएगी। अभी तो जिस वक्त इमाम हुसैन की विलादत होने वाली हुई, तो उस वक्त परवरदिगार आलम ने जन्नत की वो हूर कि जिसकी खिदमत के लिए 70,000 हूरें मुअय्यन की गई थी, और उसके चेहरे से ऐसा नूर साते होता था कि बहिश्त रोशन हो जाया करते थे। हुसैन के काबिले के लिए मुंतखब किया, और कुदरत ने आवाज दी कि जाओ हुसैन के काबिले का काम अंजाम दो। उनका नाम कई तरीके से लोग पढ़ते हैं, किसी ने लोहिया पढ़ा है, किसी ने लहबा पढ़ा है, किसी ने लाहिया पढ़ा है। बहरहाल मैंने जिस किताब से देखा है उसमें लाहिया ही था, उनका नाम लाहिया था, जो हूरों के झुरमुट के साथ फातिमा के घर आई। जब फातिमा के घर आई तो नूरानी चेहरे को देखकर फातिमा समझ गई, मगर मुतरद्दिद हैं कि आखिर किस चीज पे इनको बैठाऊं, किस चीज पे बैठाकर इनकी मेहमान नवाजी करूं। इसलिए कि हमने और आपने देखा है कि जब हमारे घरों में बाशख्सियत शख्स कोई आ जाता है, कोई असर व रसूख वाला शख्स आ जाता है, तो हम यही सोचा करते हैं कि हम इसको कैसी जगह पे बैठाएं कि इसको जर्रा बराबर भी तकलीफ न होने पाए, इसकी इज्जत अफजाई किस तरीके से हम करें। फातिमा मुतरद्दिद हुई कि किस चीज पे इसको बैठाऊं, कि एक मर्तबा उन्हीं हूरों के झुरमुट से एक हूर एक फर्श लेकर नमूदार हुई। हुसैन की विलादत पढ़ रहा हूँ, हुसैन की मजलिस है, एक मर्तबा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद से। वो निकली और उसने एक फर्श को जमीन पर बिछा दिया। अब लाया आकर उस फर्श पे बैठ गई। जब बैठी तो कुछ देर के बाद विलादत हुई। जब विलादत हो चुकी तो एक जन्नत से लाया हुआ सफेद कपड़ा निकाला और इमाम हुसैन को उसमें लपेटा, और लपेटने के बाद दोनों आंखों का बोसा दिया, चूमा, और उसके बाद मलाए आला की तरफ परवाज कर गई। अब ये नूरे इमामत जनाबे सफिया की तहवील में आ गया। जिस वक्त विलादत होने वाली थी उस वक्त पैगंबर मुसाफिर थे। सफर पे जब जाने लगे तो फातिमा से कहा कि बेटी देखो, तुम्हारे बत्न से जब ये बच्चा पैदा हो जाए तो इस बच्चे को दूध न पिलाना। और यही तारीख इमाम हसन की विलादत में भी मिलती है कि इमाम हसन की भी जब विलादत होने वाली हुई तो आपने फरमाया कि बच्चा जब पैदा हो तो उसे दूध न पिलाना, और 3 दिन तक रसूल की कोई खबर नहीं। बच्चा पैदा हो गया है, 3 दिन तक रसूल इस्लाम तशरीफ नहीं लाए। बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है। सफिया ने कहा कि बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है। एक मर्तबा मोहब्बत मादरी जोश में आई कि फातिमा ने दूध पिला दिया। जब पैगंबर घर तशरीफ लाए तो फातिमा ने कहा, बाबा आपने मना किया था कि इस बच्चे को दूध न पिलाना, इस बच्चे को दूध न पिलाना, मगर मैंने इस बच्चे को दूध पिला दिया। कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मगर सुनो, अब
قیامت تک چلانے کے لیے کوئی خاص چیز عنایت فرمانے والے ہیں۔ اب حسین کی جب ولادت ہوئی، پیغمبر گھر میں تشریف لائے، ایک مرتبہ آواز دی کہ بھوبھی میرے بچے کو میرے پاس لے کر آئیے۔ جناب صفیہ کہتی ہیں کہ اے رسول خدا، اے محمد، ارے میں نے اس بچے کو ابھی پاک نہیں کیا ہے، میں نے غسل نہیں دیا ہے۔ پیغمبر نے آواز دی اَأَنْتِ تُطَهِّرُونَهُ، اے بھوبھی اماں، ارے آپ اس بچے کو پاک کریں گی؟ پروردگار عالم نے اسے تو طیب و طاہر پیدا کیا ہے۔ پروردگار نے اس کو طیب و طاہر پیدا کیا ہے۔ رسول نے یہ سند دے دی کہ جو پروردگار کا نمائندہ پیدا ہوتا ہے وہ اول روز سے ہی پاک و پاکیزہ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی یہ دنیا والوں کے حامی و رہنما کی طرح نہیں ہوتا، جس کی ابتدا بھی نجس ہوتی ہے، انتہا بھی نجس ہوتی ہے۔ صلوات علی محمد بہرحال منور بھائی نے بھی حاضری کا ثبوت پیش کیا۔ نعرہ صلوات۔ اب جناب صفیہ نے لا کر پیغمبر کی آغوش میں اس بچے کو دیا، اس بچے کو پیغمبر کی آغوش میں دیا۔ تاریخ بہت ساری ملتی ہیں، کسی میں جو ہے انگشت مبارک ملتا ہے، کسی میں لسان مبارک ملتا ہے، اسی تاریخ میں آگے جا کر انگشت مبارک ملتا ہے، اور یہاں لسان مبارک ملتا ہے کہ جیسے ہی پیغمبر نے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا، اپنے سر کو جھکایا اور دہنے مبارک میں اپنی زبان دے دی۔ دہنے مبارک میں اپنی زبان دے دی۔ علی نے، حسین نے زبان کو چوسنا شروع کیا، گویا لعاب دہنے رسالت، لعاب دہنے رسالت غذائے امامت بن رہا تھا۔ نہیں عزیزو، میں نے غلط کہا، ابھی یہ لعاب دہنے رسالت غذائے امامت نہیں بن رہا تھا، علوم الہی کا سرچشمہ سینہ رسالت سے منتقل ہو کر سینہ امامت میں منتقل ہو رہا تھا۔ صلوات علی محمد والے محمد پہ۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ اب پیغمبر کی زبان سے اپنی غذا حاصل کر رہے ہیں۔ اب ادھر ساری کی ساری زمین خوش ہے، آسمان خوش ہے، زمین کے ذرے ذرے بڑھ کے نبی کی خدمت میں تہنیت پیش کر رہے ہیں، ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں، اشجار ہدیے پیش کر رہے ہیں، تو یوں تہنیت پیش کر رہے ہیں، کلیاں چھٹک کر تہنیت دے رہی ہیں کہ ایک مرتبہ ادھر پروردگار نے بزم ملکوتیت میں اعلان کیا، بزم ملکوتیت میں اعلان کیا کہ اے جبرائیل، ملائکہ کے قافلے کو لے کر نبی کی خدمت میں جاؤ اور
रिवायतें हैं कि 18,000 फरिश्तों के काफिले को लेकर जिब्राइल अमीन चले। और एक रिवायत में यूं बयान किया है कि 1,18,000 फरिश्तों को लेकर जिब्राइल अमीन मलय आला से चले। अब जब मलय आला से चले तो रास्ते में एक खड्डर से गुजर हुआ। जब मलाइका को जाते हुए देखा तो एक फरिश्ता था जो हजारों साल से मातूब था, एक मर्तबा आवाज दी, अरे भाई जिब्राइल कहाँ जा रहे हो? एक मर्तबा जिब्राइल ठहरे, आप पैगंबर के घर जा रहे हैं, उनके घर एक नवासा पैदा हुआ है, फातिमा के घर एक बेटा पैदा हुआ है, परवरदिगार का हुक्म है कि उनको मुबारकबादी पेश करें। कहा भाई जिब्राइल तो क्या मुझे भी ले जा सकते हो सकता है कि पैगंबर के उस नवासे के तवज्जुह से परवरदिगार मुझे माफ कर दे। किताब में जाकर मत ढूंढिएगा, इसलिए कि नीयत वही थी कि जब पैगंबर के घर नवासा पैदा हुआ है तो यकीनी तौर पे मेरे ये गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अब जिब्राइल अमीन परों पे लादे हुए उसको लेकर चले, पैगंबर की खिदमत में पहुंचे, पैगंबर से इसका हाल अर्ज किया। पैगंबर ने आवाज दी कि इससे कह दो कि अपने आप को गहवारे हुसैन से मस कर ले। अब फिदरुस ने गहवारे हुसैन से मस किया, मगर गहवारे हुसैन से मस करते ही जैसे ही पर दोबारा आया, फिर वही किबरियाई मिस्ली अनादिबुल हुसैन, अरे अब मेरे मिस्ल कौन है? मैं हुसैन का आजाद करता हूँ। अजी कैद जंगी पूरी कहते हैं कि अजब हैरत अफजा था फिदरुस का किस्सा, एताबे खुदा से जमीन पर पड़ा था और मिले बारों पर जब तो हैरत से बोला, उजाड़े खुदा और बसाए तरीके से मुबारकबादियां पेश कर रहे हैं। ए पैगंबर आपका नवासा आपको मुबारक हो। ए पैगंबर आपके नवासे की आपकी खिदमत में तहनीत व तबरीक पेश हो। अब उधर असहाब का काफिला भी बेचैन हुआ कि चले पैगंबर की खिदमत में उनके नवासे की आमद की तबरीक व तहनीत पेश करते हैं। अब उधर से काफिला चला। अब काफिला जब मस्जिद के दर पे पहुंचा, अली ने रोक दिया। कहा क्या बात है भाई? ये क्या बात है भाई, मत बोलिएगा। कहा क्या बात है? कहा अभी ठहर जाओ, अभी पैगंबर की खिदमत में 1,18,000 फरिश्ते तबरीक व तहनीत पेश कर रहे हैं। अब असहाब रुक गए, असहाब ठहर गए। जब सारे के सारे फरिश्ते तहनीत पेश करके जा चुके तो एक मर्तबा अली ने कहा कि अब जाओ रसूल की
خدمت میں تہنیت و تبریک پیش کر سکتے ہو۔ اب جاؤ نبی کو مبارکباد دو۔ اب یہ نبی کی خدمت میں آئے، ہر ایک نے تبریک و تہنیت پیش کی، ہر ایک نے ہدیہ تبریک پیش کیا۔ اب جب تہنیت کا سلسلہ ختم ہوا تو ایک مرتبہ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ علی کو کیسے معلوم کہ 1,18,000 فرشتے آپ کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرنے آئے ہیں؟ کہا کس نے کہا؟ یہ بھی مت ڈھونڈیے گا، کس نے کہا؟ کہا علی نے، کہا علی نے کہا کہ آپ کی خدمت میں 1,18,000 فرشتے مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، تہنیت پیش کر رہے ہیں۔ کہا علی کو ادھر بلاؤ۔ علی کو بلایا، جب علی کو بلایا کہا اے علی یہ کیسے تمہیں معلوم ہوا کہ میری خدمت میں 1,18,000 فرشتے مبارکبادی پیش کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ کی خدمت میں یہ ملائکہ مبارکبادی پیش کرنے آئے، ہر ایک کا الگ انداز تھا، ہر ایک کا الگ طریقہ تھا، ہر ایک کا الگ طریقہ تھا مبارکبادی پیش کرنے کا اور میں در مسجد پہ کھڑا ہوا گن رہا تھا، میں مسجد کے در پہ کھڑا ہوا گن رہا تھا کہ ایک مرتبہ رسول نے آواز دی، زادک اللہ علما یا علی، اے علی ارے پروردگار تمہارے علم میں اضافہ کرے، تمہارے علم میں اضافہ کرے۔ علی انہی پیغمبر کی دعاؤں کا اثر تھا، انہی پیغمبر کی دعاؤں کا اثر تھا کہ منبر کوفہ سے علی نے آواز دی تھی کہ سلونی سلونی ارے جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو، اس زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں کو میں جانتا ہوں کہ صادق کون ہے، کاذب کون ہے، جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے، میں جانتا ہوں کہ اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ ارے مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا کہ رضی اللہ کون ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ نعرے حیدری، نعرے تلوار، مجالس خمسہ میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ولادت کے کچھ عرصے کے بعد، جب ولادت ہو چکی، کچھ عرصے گزرے تھے کہ ایک مرتبہ فاطمہ حیران و پریشان روتی ہوئی، گریہ کرتی ہوئی خدمت پیغمبر میں آئی اور عرض کر رہی ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر نے روتے ہوئے دیکھا، بیٹی فاطمہ کیوں رو رہی ہو، تم کو کس نے رلایا ہے؟ کہا بابا کیسے نہ روؤں، آج عجیب حادثہ پیش آیا ہے، عجیب حادثہ، عجیب سانحہ پیش آیا ہے۔ کہا بیٹی بتاؤ، جلدی بتاؤ کیا ہوا؟ کہا کہ بابا میں آج حسین کو گہوارے میں سلا کر امور خانہ میں مصروف تھی کہ کچھ دیر کے بعد جب میری نظر گہوارے پہ گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا حسین گہوارے میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب رسول خدا نے فاطمہ کی یہ بے چینی دیکھی تو دستے دعا بلند کر دیے، اے پروردگار تجھے فاطمہ کے اضطراب کا واسطہ ہے، اے پروردگار تجھے میری بے قراری کا واسطہ ہے۔ ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی
रसूल खुदा जिस वक्त हुसैन पैदा हुए थे, जिस वक्त हुसैन पैदा हुए, मलाइका समावात मेरी मईयत में हुसैन की ज़ियारत के लिए आए थे, हुसैन की ज़ियारत के लिए आए। जब ये यहाँ से वापस गए तो मुकर्रबे बारगाहे इलाही के जो फरिश्ते ज़ियारत हुसैन से महरूम थे उन पे फख्र मुबाहत करने लगे। और जब इन्होंने उन पे फख्र मुबाहत किया तो एक मर्तबा परवरदिगार की बारगाह में उन्होंने अर्जी पेश की कि ये परवरदिगार हमें जमीन पर जाने की इजाजत दे ताकि हम तेरे रसूल के नवासे हुसैन की ज़ियारत कर सकें। अब उनकी अर्जी को जैसे ही सुना परवरदिगार ने मुझे हुक्म दिया कि जाओ नबी के नवासे हुसैन को यहाँ ले आओ। नवासे रसूल हुसैन को यहाँ लेकर आओ। और मैं आया, हुसैन को लेकर गया और मलाइका ने तशनगिये ज़ियारत को उठा दिया है। अब मैंने हुसैन को गहवारे में लाकर रख दिया है, हुसैन को गहवारे में लाकर रख दिया है। अब फातिमा से कहिए कि वो घर जाएं, उनका बेटा बहिफाजत है। अजीजों, आप देखिएगा कि वहाँ मलाइका की ज़ियारत गाह बन रही है, मलाइका ज़ियारत पे आ रहे हैं। कोई हुक्म नहीं लगाता है, मगर हम अगर हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करने के लिए जाएं तो हज़ारों कुफ्र के फतवे काट सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अगर हम पे कुफ्र के फतवे लगाने हैं तो सबसे पहले मलाइका समावात जो बदने मलकूतियत में रहते हैं उन पे कुफ्र के फतवे लगाने होंगे। अजीजों, लेकिन वही हुसैन जो ज़ियारत गाहे मलाइका समावात था, उसी हुसैन के साथ इस उम्मते पैगंबर ने क्या सलूक पेश किए, तफसीलन मसाइल नहीं पढ़ना है, सिर्फ चंद फिक्री आप हज़रात के खिदमत में अर्ज करना है कि ऐसे ऐसे जुल्म किए कि जितने अपने कुदरतो इम्कान में हो सकते थे जुल्म करते रहे। यहाँ तक कि वो सर जो ज़ियारत गाहे मलाइका था, उसी सर को नोके नेज़ा पर लेकर कूफा और शाम की बाजारों में और दरबारों में फिराते रहे। और हुसैन की माँ बहनों और बेटियों और बीवियों को बेमकनों चादर कूफा और शाम की बाजारों में कैद करके ले जाने लगे। अजीजों, इस काफिले को कैद तो कर लिया गया, लेकिन कुछ ही दिन तक ये रोबो दबदबा था कि उस शाम के तमाशाबीन, इन कैदियों का तमाशा जिन्होंने देखा था, जब उन पे हक आश्कार हुआ कि ये आले रसूल हैं, इनको नाहक सताया जा रहा है, तो अब यजीद के ऊपर लानत करने लगे, उसके बुराइयां करने लगे, उसको ताने देने लगे। और जब ये यजीद ने देखा कि अब ये हुकूमत तहबाला होने वाली है, जब उसे ये खौफ लाहिक हुआ कि अब ये तख्तो ताज मेरा मिटने वाला है, तो एक मरतबा सैयद सज्जाद को बुलाया, सैयद सज्जाद को दरबार में बुलाया और हद्दाद को बुलाया। हद्दाद को बुलाकर हाथों से हथकड़ियाँ जुदा की, पैरों से लंगर को जुदा कर दिया और खारदार दौ को गर्दन से जुदा करने के बाद एक मर्तबा सैयद सज्जाद से कहा, ए सैयद सज्जाद, अब तुम आज़ाद हो, अब तुम
आजाद हो, अब चाहो तो तुम यहाँ रहो या चाहो तो मदीने चले जाओ। मगर सैयद सज्जाद ने कोई जवाब न दिया। सैयद सज्जाद ने आवाज दी, मैं पहले अपनी फूफी अम्मा से इजाजत ले लूं, फिर मैं कोई तुझे जवाब देता हूँ। सैयद सज्जाद अपनी फूफी माँ की खिदमत में आए। जैसे ही फूफी ने देखा कि भतीजा हथकड़ियों से और बेड़ियों से आजाद हो चुका है, तोके खानदान से आजाद हो चुका है, आगे बढ़ी और गले में बाहें डाल दी, सीने से लगा दिया और एक मर्तबा रोना शुरू किया, गिरना शुरू किया। सैयद सज्जाद ने आवाज दी, ए फूफी अम्मा, अब यजीद ने एक पैगाम भेजा है, एक पैगाम भेजा है। ए फूफी अम्मा, अब यजीद ने हमें आजाद कर दिया। यजीद ने कहा है कि अब तुम आजाद हो, चाहो तो तुम मदीने जाओ, चाहो तो तुम यहाँ रहो। लेकिन अभी मैंने कोई जवाब न दिया। मैंने यजीद से कहा है कि मैं अपनी फूफी से इजाजत लेकर बताता हूँ, मशवरा लेकर बताता हूँ। ए फूफी अम्मा, आपकी राय क्या है? एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, ए बेटा सैयद सज्जाद, अरे मेरा भैया इस दुनिया से चला गया, मेरा भैया अब्बास इस दुनिया से चला गया, अरे मेरे भाई का सर कट गया, मेरे औनो मोहम्मद इस दुनिया से चले गए, अरे कासिम चले गए, अकबर चले गए, अली असगर चले गए, मगर ये बेटा सैयद सज्जाद, अरे मैंने अभी तक अपने नौनिहालों और भाइयों का मातम नहीं किया। ए सैयद सज्जाद, अरे यजीद से जाकर कह दो कि कोई ऐसी जगह खाली कराए, कोई ऐसी जगह दे दे कि हमने अभी अपने शहीदों का मातम नहीं किया है, हम अपने शहीदों का मातम करते हैं। सैयद सज्जाद दरबार में पहुंचे, यजीद से कहा कि कोई ऐसा घर खाली करा दो कि जहां हम अपने शहीदों का मातम कर सकें। यजीद ने घर खाली कराया और पूरे शाम में ये ऐलान आम हो गया कि जो भी इन अहले बैते रिसालत से मिलना चाहता है मिल सकता है, पूरी आजादी है। जब घर खाली कराया, हुसैन ज़ैनब ने मजलिस का इनेकार किया, शाम की बीवियां आने लगी, पुरसा देने लगी। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, ए बेटा सैयद सज्जाद, अरे यजीद से कहो कि हमारे लुटे हुए सामान हमें वापस कर दे, हमारे लुटे हुए सामान हमें वापस कर दे। लुटे हुए सामान वापस आने लगे। अरे कभी चादरें आ रही हैं, कभी नन्हे नन्हे बुंदे आ रहे हैं, कभी कोई सामान आ रहा है। अब जब सारे सामान खत्म हो चुके तो अब शुहदा के सर की बारी आई। कभी अकबर का सर आ रहा है। अरे उम्मे लैला ने आगे बढ़ के दे दिया, उम्मे लैला ने आगे बढ़ के दे दिया। एक मर्तबा असगर का सर आया, उम्मे रबाब ने आगे बढ़ के दे दिया। एक मर्तबा दो नन्हे नन्हे सर आए, मगर उन सरों का लेने वाला कोई न था। एक मर्तबा शाम की औरतों ने जब उन नन्हे सरों को देखा, आवाज दी, ए बीवियों, अरे क्या इन बच्चों की मां मर गई है? अरे ज़ैनब से सब्र न हो सका, आवाज दी, नहीं है बीवियों, अरे ऐसा न कहो, अरे उनकी मां जिंदा है, मगर क्या करे वो मां, अरे ज़हरा के लाल को रोए या अपने बेटे को रोए। रिवायत करती है कि 7 दिन तक मुसलसल शुहदाए करबला का मातम होता रहा, मजलिसें बर्पा होती रही। शाम की औरतें, हद तो ये थी कि पनियों मैया की औरतें भी कुर्से में हाजिर होती थीं, गिरियो उधारी करती थीं, गिरियो बुका करती थीं, नहो बुका करती थीं। और 7 दिन के बाद ये काफिला नौमान इब्ने बशीर की हमराही में करबला की सिमत चला। जब ये काफिला करबला में पहुंचा है, अजीजों बस मुख्तसर किया, जब ये करबला में पहुंचा है तो एक मर्तबा शहजादियों ने अपने आप को ऊंट से गिराना शुरू किया,
ऊंट से गिराकर अपने वारिसों की कब्रों से जाकर लिपट गई। अरे एक रिवायत मिलती है कि अरे ज़ैनब ने भी अपने आप को ऊंट से गिराया, मगर ज़ैनब अरे घुटनी होके बंधल के अपने भाई की कब्र से जाकर लिपट गई। ए भैया, अरे आपके बाद जालिमों ने आपके सकीना को तमाचे मारे, आपकी यतीमा को तमाचे मारे, आपकी यतीमा के मुंडे छीन लिए। ए बारे भैया, अरे वो आपकी दी हुई अमानत कैद खाने सामने मैं खोकर आई हूँ। अभी तो तमाम बीवियाँ अपने वारिसों की कब्रों पे गिरफ्तारी में मसरूफ है। एक मर्तबा ज़ैनब ने सैयदे सज्जाद से कहा, ए सैयदे सज्जाद, अरे मेरे भैया अब्बास की कब्र नजर नहीं आ रही है। कहा, एक भी माँ, अरे मेरे चचा अब्बास की कब्र नहर के किनारे है, आइए लेकर चलता हूँ। एक मर्तबा सैयदे सज्जाद ने ज़ैनब को साथ लिया और नहर के किनारे गए। एक नन्ही सी कब्र की तरफ इशारा किया, आवाज दी, एक भी माँ, अरे यही मेरे चचा अब्बास की कब्र है। अरे ज़ैनब ने जैसे ही कब्र को देखा आवाज दी, ए सैयदे सज्जाद, अरे मेरा भैया अब्बास तो बड़ा कदावर था ना। अरे जब घोड़े पे बैठता था तो उसके पैर जमीन पर खटखटाते थे। अरे ये तो तुम किसी बच्चे की कब्र पर लेकर आए हो। एक मर्तबा सैयदे सज्जाद ने आवाज दी, ए भूमि अम्मा, अरे जब मैं अपने नानाए चौदह के लिए आया तब मैंने क्या देखा कि मेरे चचा का लाशा अरे जालिमों ने नहर के किनारे टुकड़ों में तकसीम करके बिखेर दिया था। ए भूमि अम्मा, मैंने अपने चचा के लाशे को चटाई में जमा करके एक नन्ही सी कब्र खोद के दफन कर दिया। ए भूमि अम्मा, ये मेरे चचा अब्बास जी की कब्र है। परवरदिगार हक़ मोहम्मद वाले साथी, जो भी मोमिन मोमिनात परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर करें। परवरदिगार जो मरीज़ हैं उनको शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार जो साहिबाने औलाद हैं उनकी औलाद को नेक और सालेह अता फरमा। परवरदिगार जो साहिबाने औलाद नहीं हैं उनको औलाद इनायत फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़ुहूर की ताज़ीम फरमा और हमें उनके नाज़रीन में शुमार मातमे से